has not gone so well. So and then you maybe are all nervous and thinking like what should be your strategy, like how to manage your time, and like what the resources you should reach to study for your minors, and so on many more. So let's discuss all these things with someone, Anshuman sir, like who have already achieved these things and even much more. Like some of his achievements are, Anshuman sir is from MNC department with all with department rank 2, and he also do the DEFC from electrical to MNC, and his overall CGPA is 9.69 in MNC department, and he is also among the top 7 meritorious students in IIT for 3 times, and 3-time Institute Merit Awardee for academic excellence. Best position maintained in MNC department with a 9.69 CGPA. Did software develop internship with QSS Venture, Seoul, South Korea. ACM ICPC regionalist in 2021. Rated 2170 within top 100 coders among 38,000 Indian coders on Codeforces. World ranked 109 in Codeforces education round. Hashtag 112 among 33,000 plus participants, and even much more. Like Anshuman sir is just amazing. So like you all can ask your doubts regarding your minors, and maybe some other doubts related to your academics. So now I am hand over the session to the Anshuman sir. Hi, am I audible? Yes sir, yes, you are perfectly audible. Yeah, so let me share my screen. Yeah, so today I was asked to talk about usually some of the most important questions that you might be asking yourself in first year. So why we fail in time management and uh, how to study without distractions. So basically, first of all, like how many people are there here? So can you tell me what you did during your JE time that you were able to study for, like how many hours you used to study in JE and what changes you like felt in your attitude and in your like study routine when you like entered IIT? Anyone, if you want to say, you might want to type it. May I speak? Yeah, sure. Uh, so the first change I just experienced that was that here I have to do a lot of physical work, which I just ignored during my JE time. I just focus on my studies, but here I just have to roam here and there on the campus, and all the other things like musty, and fun things. And then we have to study. I think we lost your last sentence. Can you repeat it? Last 10 seconds. Hello. I think your voice trailed off for a while. Can you repeat your last like 10, 15 seconds what you said after Am I audible now? physical work? Yeah. All I'm saying is that studying here is sometimes become exhausting. Like I'm completely tired sometimes, and then I have to study for 3-4 hours. Uh, that becomes a lot. Right. Anyone else? So one more point I can add. Uh, Actually, during the JE time, we were have very defined resources. Like we have to study this, and then this. But here, what happens actually, we get a little bit confused in finding resources, which is best and which is not. And then then sometimes we just study some unusual or unhelpful things also in the process. right. Anyone else? So yeah, what I also felt during my first year was, yeah, that is true. That during JE there was a like clear pathway what you had to read.
So in my coaching institute, they used to give me some material. I used to only follow that. I did not follow much of reference books. Uh, in IIT, there was like during at least first, second semester, at least there was some craze among some people that they would go to library and look at some reference books. Yeah, anybody is saying something? Okay, before I continue, how many of you are actually monitoring your mobile usage? Do you have any app or do you like keep track? Like, what is the average daily usage or weekly usage? Anybody keeping track of that? Anyway, leave it. So, yeah, what I felt was during my first year also. So during JE, I used to study like something like I think 8 hours usually, 6 to 8 hours, sometimes 10 hours per day. After JE, obviously there was, I mean, apart from studies, you see a lot of different things. Like it can seem daunting. Things like extracurriculars mainly. You see first during the tour of stalls, you get like introduced to so many different things. So astronomy club, coding club, this club, that robotics, everything, and they all sound very nice and uh, you feel like giving your time a lot of time and attention to these things, and that's good. uh, but the thing is many people get carried away with these things. Some people uh, there are a few people, not many, who don't give time to either this or that, either studying or extracurriculars. They just I mean, there was this one guy in our hostel. He used to play PUBG all the time, so that was his problem. So uh, his main goal was just getting into IIT, and then after IIT, there is no clear goal, right? Like, what are you doing in IIT? During your JEE studies, you were focused, like getting a proper rank in your JEE advanced, right? But here, there is like overall, there is no fixed goal, right? There are like a lot of different uh, paths that you can take after this. That's in fact good, but it can seem like daunting, as he said. Whenever there is a clear syllabus, whenever there is a clear path, you know what to do, but now there is many different things. So I'll give you some overall tips for studying, especially in your first year. So one thing you mentioned was physical exhaustion, right? So are you in some sports or something? Are you in inter IT or anything? I think it was Aditya, right? No, sir, I'm not actually. Yeah, so first year mein you generally practice, right? You like explore your sports. So what I would recommend is 1 week before minor. When are your minor starting? From next Monday. So that will be May 7th, May Yeah, 8th, yeah. May 7th or 8th. May 9th actually. May 9th. So you have a week, right? So during this week, you reduce your like any extracurricular activities. Only during like in the evening 5 to 6 you go for your whatever matlab, any physical activity, but after that you like it's better to study. uh, if you're doing gym or something, that is also okay. Do 1 hour, 1.5 hour max, but not more than that. And for the syllabus, you have a like fixed set of courses like MTL, APL, PYL, and so on, right? Yes, sir. They will have this set of lectures, and then they generally provide tutorials, right? So in first year, what happens is it's usually enough to just go through the lectures, and the tutorials actually give you a clear set of indirectly they give basically tell this is what will be asked in the exam. So tutorials generally are exhaustive in covering all sorts of types of questions that you might be asked in your exam. Sorry, sir, to interrupt in between. Sir, you can speak in Hindi, like some of us like are not comfortable in English. So अच्छा can you ओके, please? ठीक है. So Thank you. मैं कह रहा था कि uh,
हाँ, so the tutorials that you're given, the tutorials जो देते हैं सारे courses में, MTL हो गया, ELL, PYL, I think both दोनों batch के students होंगे, right? ELL वाले and PYL वाले. Yes sir. हाँ, तो यूजुअली जो ट्यूटोरियल रहता है जो देते हैं आफ्टर सम लेक्चर्स, एक ट्यूटोरियल देंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल, वो पूरा कवर कर लेता है कि यही चीजें आएंगे, एंड ट्यूटोरियल के बाहर से जनरली नहीं आता अनलेस प्रोफेसर थोड़ा लाइक मतलब ही वांट्स टू मेक द क्वेश्चन टफ, मतलब पेपर टफ बनाना ही चाहते हैं पहले से, एवरेज बहुत ज्यादा है एंड ही वांट्स टू टेक ब्रिंग डाउन द एवरेज अ बिट सो दैट ओवरऑल एवरेज 55-60 के आसपास आउट ऑफ 100 यूजुअली वही होता है, एंड एवरेज पे ग्रेड 7 लगता है यूजुअली. तो इन दैट केस ही कैन आस्क कुछ क्वेश्चंस दैट आर लाइक आउट ऑफ, नॉट आउट ऑफ सिलेबस, बट यू विल हैव टू थिंक ऑन दैट. Everything that they will ask, तुम्हारे resources will definitely be there in your things, in your whatever he or she has taught. So syllabus is actually, I feel syllabus इसमें ज्यादा क्लियर है, फर्स्ट ईयर में ज्यादा क्लियर रहेगा rather than जेई, क्योंकि जेई में तुम्हें बोले होंगे कि थोड़ा यहाँ से देख लो, केमिस्ट्री के लिए स्पेशली थोड़ा मतलब संगीत से पढ़ लो, थोड़ा इस बुक से पढ़ लो, उस बुक से पढ़ लो, थोड़े क्वेश्चंस वहां से कर लो, एंड जितना तुम कर सकते हो उतना अच्छा. बट इन दिस केस ना, ट्यूटोरियल अगर तुम कर लोगे एंड यू अंडरस्टैंड दैट, तो आई थिंक इट्स ओके, इट्स फाइन. मतलब इनफैक्ट थर्ड फोर्थ ईयर कोर्सेज, थर्ड ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी ऐसे कुछ कोर्सेज हैं एमटीएल के ही, जिसमें तुम अगर ट्यूटोरियल पूरा कर लोगे ढंग से तो तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा, एंड वही सारी चीजें, वही टाइप की चीजें पूछेंगे. या सो तुम्हें अभी तक तुम्हारे फर्स्ट ईयर में ऐसा कोई बोला है क्या कि ग्रेड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट? मान लो तुम टूर ऑफ स्टॉल से कहीं पे गए हो कोई क्लब मीटिंग में, एंड कोई बोल दिया होगा ऐसे, ग्रेड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, कोई सीनियर, ऐसा कुछ हुआ है? आई होप नॉट, क्योंकि मेरे फर्स्ट ईयर में एक हुआ था कि आई थिंक कोई क्लब का ओरिएंटेशन था, एंड स्टेज पे वो बंदा आके बोलता है कि हाँ ग्रेड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, वैसे कुछ नहीं होता, तुम प्योर्स कर लो, बहुत अच्छा है ये वो. बट वो बहुत बकवास है. ग्रेड्स, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर के ग्रेड्स काफी इंपॉर्टेंट होता है. तुम्हारे अगर तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया होगा ना, दिस ईयर सेकंड सेमेस्टर, राइट? Yes sir. हाँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर इतना अच्छा भी नहीं हुआ तो ठीक है, तो ट्राई टू लाइक इम्प्रूव इन योर सेकंड सेमेस्टर. सो एज आई हैव रिटन हियर कि फर्स्ट ईयर ग्रेड्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम्हारे सेकंड ईयर से इफ यू आर willing to participate in any extra curriculars, like तुम लीड करना चाहते हो अपने हॉस्टल को, या उसके बाद ही कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, तो जनरली ऐसे शुरू होता है, तुम अपने हॉस्टल के रिप्रेजेंटेटिव बनते हो फॉर कल्चरल एक्टिविटीज सो टू स्पीक. तो उसमें लाइक इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट है, यू नीड अ मिनिमम 7 इन योर फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स फॉर दैट. और बहुत सारे लोगों के डिपार्टमेंट चेंज के फंडे होंगे कि डिपार्टमेंट चेंज करेंगे. यहाँ पे कोई है ऐसा? मेरा जैसे ये शिवम ने बोला, मैंने डिपार्टमेंट चेंज करा था, तो ऑब्वियसली सीजीपीए रखना पड़ता है. सो टू गिव यू एन आइडिया, CS1 में अगर डिपार्टमेंट चेंज करना है तो सीजीपीए शुड बी लाइक एब्सर्डली हाई, बहुत ज्यादा होना, मतलब 9.8 9.9 वैसे कुछ रखना है. फॉर एमएनसी आई थिंक हमारे टाइम में कुछ 9.5 प्लस 9. मेरा 9.6 था, मेरा 9.7 के आसपास था, तो मेरा हुआ था, तो 9.6 प्लस रखना था. तो वैसे ई डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा कम 9.3 आई थिंक था वैसे. तो डिपार्टमेंट चेंज के लिए ऑब्वियसली कुछ ऑडिट करना नहीं होता कोर्सेज, एंड बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम नेक्स्ट 3 इयर्स वही पर्टिकुलर ब्रांच की चीजें पढ़ोगे, राइट? सो इफ यू आर ऑलरेडी नॉट इंटरेस्टेड इन योर ब्रांच, एंड तुम आईटी दिल्ली इसलिए ही आए हो कि तुम डिपार्टमेंट चेंज ही करोगे, और इफ यू हर्ड कि अभी डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं एंड दैट वाज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, तो यू शुड ग्राइंड दिस 1 वीक एंड ड्यूरिंग द माइनर्स कि मतलब जितना ज्यादा सीजी ला सको उतना कर दो. एंड अनदर थिंग इज फर्स्ट ईयर के बाद जनरली, इनफैक्ट मेनली थर्ड सेमेस्टर में लोगों का सीजी बहुत ज्यादा गिर जाता है, क्योंकि
there is a sudden rise in the rigor of the courses. So first year में मैं जैसे बोला कि ट्यूटोरियल कर दो हो जाएगा, माइनर के एक वीक पहले भी तुम अगर फ्रेश अगर स्टार्ट करो ना पढ़ना एंड यू आर रेगुलर इन योर स्टडीज तो हो जाता है स्टडीज इवन फॉर अ 10 हो जाता है इन 1 week. You want to ask something? Sure. सर एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्यूटोरियल्स एक्चुअली. तो कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा है कि उन्होंने ट्यूटोरियल्स के सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किए हमें. तो लाइक इसमें समटाइम्स काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के हम उसको अप्रोच लगा रहे हैं एंड फिर पता चलता है कि हमारा पूरा अप्रोच ही गलत था. तो ऐसे करते काफी मतलब एफर्ट लग जाता है. तो वैसे में सोल्यूशन यूजुअली प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि आई थिंक तुम्हारा कुछ सेपरेट ट्यूटोरियल क्लासेस हुए होंगे राइट इन विच दे क्लियर द डाउट्स. सो उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम वो अटेंड करो एंड पर ठीक है अभी हो गया, अभी एक ही हफ्ता बाकी है माइनर के लिए. तो अभी तुम क्या करो कि जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना कोर्स का एक ग्रुप होगा व्हाट्सएप में, वहां पे पोस्ट करो, कोई ना कोई तो करा ही होगा तो वो सोल्यूशन दे देगा. तो मैं एक चीज और कर रहा हूँ कि मैंने लास्ट ईयर के जो ट्यूटोरियल्स थे उसके मुझे पूरे सॉल्यूशंस मिल गए हैं. तो मैं लाइक उसी को सॉल्व कर रहा हूँ और जो भी हो रहा है मैं खुद से और डिस्कस कर ले रहा हूँ. तो ये मुझे ठीक लग रहा है. अभी जो भी डाउट्स है ना तुम मुझे भेज दो, या तो अगर कहीं से सोल्यूशन नहीं मिल रहा ना तो मुझे भेज दो. ठीक है मैं ट्राई करूंगा. ओके सर, थैंक यू सर. कौन से कोर्स की बात कर रहे हो सर? एपीएल. दिक्कत एपीएल में हो रही है. सीएमएल तो मैं निकाल ले रहा हूँ, एपीएल में दिक्कत हो रही है. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है हो जाएगा चलो. और ऑफ कोर्स आई वाज कंटिन्यूइंग अबाउट व्हाई ग्रेड्स आर इंपॉर्टेंट. सो एक बार तुम्हारा फर्स्ट ईयर का सीजी आता है ना उसके बाद ऑब्वियसली तुम्हारा एसजीपीए तो एवरेज होता है विद सीजी दैट यू हैव. तो वो मोर और लेस लाइक कांस्टेंट हो जाता है, इतना ज्यादा चेंज नहीं होता. एंड एक बार तुम्हारा अगर 7 में फिक्स हो गया तो जितना भी तुम लाइक खींचना चाहो तो वो धीरे धीरे ही बढ़ता है सीजीपीए. तो फर्स्ट ईयर में ही अगर हाई कर लो तो अगर इट्स एक्ट्स लाइक अ बफर. बाद में अगर थर्ड सेमेस्टर में कम भी हो जाए, मैं जैसे बोल रहा कि थर्ड सेमेस्टर में बहुत ज्यादा रिगरस हो जाता है, बस ट्यूटोरियल वगैरह करने से जनरली नहीं होता, थोड़ा सोचना पड़ता है कोर्सेज में एंड थोड़ा रेगुलरली पढ़ाई करना पड़ता है. तो जनरली सीजी लोगों का कम हो जाता है इन दैट सेमेस्टर. एंड एज यू गो टुवर्ड्स योर फोर्थ सेमेस्टर most companies matlab most of you will be sitting for placements in like 7th semester के बाद. तो at that point अगर तुम्हारा CGPA मान लो बस 7 8 6 वैसा है तो तुम्हें कंपनीज बैठने भी नहीं देंगे, लाइक तुम्हारा लाइक सीवी भी नहीं देखेंगे. तो देयर वर लाइक मिनिमम सीजी रिक्वायरमेंट कि तुम्हारा 8 होना है या 8.5 होना है before they allow you to sit for their interviews. So that's something very annoying but है वैसे कंपनीज का. Even you're like even if you think you're very मतलब qualified you need the CGPA. and जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर कोर्सेस लाइट होते हैं एंड जनरली कंसिडर करते हैं ग्रेडिंग इजी करते हैं. तो दैट्स यूजुअली द बेस्ट सीजी बूस्टर दैट आई कैन से. तो फर्स्ट ईयर ग्रेड्स काफी इंपॉर्टेंट होता है. और हाँ तो as I was about to discuss why we fail in time management and role of sense control in studying. वैसे मेरा मेन पॉइंट तो ये था कि आफ्टर जेई तुम लाइक बहुत फ्री हो गए हो ना. जेई एडवांस के बाद 2 महीना तुम्हें छुट्टी मिलता है एंड देन तब तक तुम कुछ नहीं करते एंड देन उसके बाद तुम एडमिशन लेते हो. सो इनफैक्ट तुम्हारा तो कुछ और हुआ होगा राइट 2021 बैच का. आई डोंट नो कब तुम्हारा एडवांस हुआ था बट हाँ लाइक स्टडी रिक्वायरमेंट्स पूरा कम हो जाता है एट दैट पॉइंट एज यू एंटर आईआईटी. सो पीपल क्या करते हैं कि स्टडीज को इतना सीरियसली नहीं लेते एंड मोस्टली दे स्टार्ट गेमिंग की लाइक सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है. सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि तुम अपना फोन यूजेज ट्रैक करते हो नहीं. सो वन गुड थिंग दैट आई फाउंड आउट कि तुम अपना फोन यूजेज ट्रैक करना स्टार्ट करो. देयर इज एन ऐप कॉल्ड योर आवर, यूट्यूब में देखो. वो दैट बेसिकली ट्रैक्स कि तुम आज के दिन में कितना टाइम फोन यूज करे एंड लाइक पर ऐप कितना टाइम यूज करे. सो that's something that you could do. Another thing that I found useful is तुम reminders लगा सकते हो कि at this point in time मैं ये पढ़ूंगा कि what to study and when to study. So मान लो आज 6 बजे का लाइक एक रिमाइंडर लगा दिया कि 6 बजे मैं आई विल स्टार्ट सीइंग CML के लेक्चर्स.
तो ये करना है. एंड वन मोर यूजफुल थिंग दैट आई फाउंड आउट कि जस्ट माइनर के पहले एक हफ्ते पहले इफ यू आर स्टार्टिंग टू रिवाइज कि कुछ लेक्चर्स तुम्हारे छूट गए थे एंड यू स्टार्ट सीइंग दैट, तो तुम लाइक बैक काउंटिंग करो कि तुम्हारा माइनर इस दिन है एंड उस माइनर से पहले इतने दिन फ्री है. आई थिंक तुम्हारा माइनर तो लाइक चार चार ही दिन होगा, एवरी डे एक एक माइनर होगा राइट तुम्हारे शेड्यूल में भी. यस सर. हाँ तो ऐसा कर सकते हो कि इस माइनर से पहले मुझे आधा दिन मिलेगा बिफोर दैट माइनर. सो उस टाइम में मैं कुछ लेक्चर्स नहीं रखूंगा, बस ट्यूटोरियल करूंगा उस दिन. एंड नाउ यू हैव 6 days, तो आई थिंक यू विल बी हैविंग 4 courses जिसके माइनर तुम दोगे. तो एवरी डे मैं एक एक कोर्स का पूरा लेक्चर्स खत्म कर दूंगा. एंड लास्ट 2 days आई विल कीप फॉर द फर्स्ट माइनर एंड देन सेकंड माइनर एंड सो ये बैक काउंटिंग करो कि कितना लेक्चर्स बाकी है एंड उसे कितना टाइम देना पड़ेगा फॉर सीइंग ऑल दोस लेक्चर्स. ठीक है. एंड देन उसके ट्यूटोरियल कितना टाइम करना पड़ेगा. एंड माइनर के दिन से पहले तुम लाइक ऐड करते जाओ इतना टाइम रिक्वायरमेंट है. मतलब एक दिन ये कोर्स करूंगा, फिर एक दिन ये कोर्स करूंगा, एक दिन ये कोर्स करूंगा. एंड देन दिस विल गिव यू अ सेंस ऑफ लाइक कॉन्फिडेंस भी देगा कि हाँ मेरा लाइक सिलेबस हो जाएगा इफ आई गो एट दिस पेस. एंड दिस विल गिव यू अ सेंस ऑफ कि कितना पेस में चलना चाहिए कि हाँ टुडे आई विल कंप्लीट कि मान लो 5-6 लेक्चर्स इस कोर्स के, देन थोड़ा ब्रेक ले लूंगा, बाहर घूमूंगा एंड देन 5-6 लेक्चर्स. एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दिस टाइम अवॉइड मूवीज वगैरह. अगर ब्रेक लेना है तो टेक अ वॉक और समथिंग, क्योंकि मूवीज वगैरह देखोगे तो वो वही सब दिमाग में चलता रहेगा. एज ए सेड वो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है. तुम्हारे जेई टाइम में भी यही सजेस्ट कर रहे होंगे कि जस्ट अवॉइड मूवीज की या वेब सीरीज समथिंग. गाने सुन सकते हो बट डोंट लिसन टू सॉन्ग्स व्हाइल स्टडीइंग. मेरा रूममेट ये करता था, इट वाज वेरी अनोइंग. तो स्पीकर पे चलाता था वो. एंड हाउ दे कैन प्रिपेयर बेटर इन 6 days, ये मैं कोर्स वाइज बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है एंड हाउ टू स्टडी मार्क्स स्पेसिफिक. हाँ कोर्स वाइज ही बताऊंगा. अब बिफोर दैट किसी को कुछ क्वेश्चन है कि एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस बिफोर आई मूव ऑन टू स्पेसिफिक कोर्स वाइज टॉपिक Sir, वाइज क्या क्या पढ़ना है. I would like to request if we get time, can you share your coding journey with us बाद में? अच्छा कोडिंग जन, हाँ लास्ट 15 minutes में बता दूँ. Okay sir. Sir, Manya has a question in the chat box. रोल बैक के लिए आई एम नॉट श्योर. आई थिंक इफ यू डोंट पास ऑल योर फर्स्ट ईयर कोर्सेज still you can do your first year courses later, but I think काफी सारे courses अगर fail कर गए तो I think you will have to repeat your first year something like that. I'm not sure. एक बार तुम्हारे courses of study एक PDF रहता है तुम्हारा, e-academics में भी मिल जाएगा. e-academics में courses of study एक टैब रहता है, तो उसमें एक बार देख लो कि वहाँ पे लाइक रोल बैक का क्या रहता है सीन. आई एम नॉट श्योर कि रोल बैक का क्या होता है. ठीक है. कोर्सेज का वैसे आई हैव नॉट रिटन फॉर ऑल ऑफ देम, बट कुछ कुछ जो मुझे अच्छा लगा था मैंने लिख दिया था. सो व्हाट आर कोर्सेज यू हैव इन दिस सेमेस्टर? सारे ही होंगे. ठीक है, तो एमटीएल का पहले बता देता हूँ. मेरा ही मैथ्स है तो फेमिलियर रहेगा. तो मैथ्स का क्या रहता है कि जनरली ऐसा रहता है कि कुछ कोर्सेज में कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ऐसा प्रूफ क्लास में कराया था एंड सेम काइंड ऑफ प्रूफ आई कैन अप्लाई इन दिस क्वेश्चन. सो तुम्हारा एमटीएल में ये होगा ना, कैलकुलस है एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस है. सर linear algebra and differential equation. लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डिफरेंशियल इक्वेशंस में तो लाइक स्पेसिफिक मॉडल्स होंगे प्रॉब्लम्स के कि लैप्लास हो गया, लैप्लास होगा या नहीं पता नहीं, बट लैप्लास हो गया जो भी होगा. तो स्पेसिफिक मॉडल लीनियर अलजेब्रा ही आ रहा है. बस लीनियर अलजेब्रा है. यस. अच्छा, तो लीनियर अलजेब्रा में भी, अच्छा लीनियर अलजेब्रा में मोस्टली आई थिंक फर्स्ट ईयर में तो बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो फटाफट करना होता है. आई थिंक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं वगैरह वगैरह वही होगा राइट. ट्यूट्स में भी वही होगा. तो ट्यूट्स एक बार देख लो क्या क्या मॉडल से क्वेश्चंस हैं.
एंड उन सबको लाइक थोड़ा टाइम कर लो कि इस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, कि अगर मुझे एक मैट्रिक्स को इन्वर्स करना है या डायगोनलाइज करना है तो उसमें लाइक कितना मिनट्स लग रहा है, लाइक ब्रीफ आइडिया ले लो, ताकि तुम्हें एग्जाम में भी एक बार पता चल जाए कि हाँ इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग सकता है, ये क्वेश्चन थिंकिंग वाला है, ये मैं थोड़ा एंड में करूंगा, इजी वाले पहले कर लूंगा वैसा। और थिंकिंग वाले मैं जो बोल रहा था, अगर तुम्हारा कैलकुलस या लीनियर अलजेब्रा है तो उसमें कुछ प्रूफ्स आ सकते हैं। तो तुम्हारे क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कराए होंगे, जिसके लाइक प्रूफ्स डिटेल में कराए होंगे, वो ज्यादा नहीं होंगे। तो गो थ्रू देयर प्रूफ्स, वैसे रटा नहीं मारना है, समझना है कि लाइक हाउ यू आर प्रूविंग, इस स्टेप से स्टेप क्यों गए, हाउ इज इट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट, एंड व्हाई डज इट मेक द प्रूफ इजी, या लाइक वैसे कुछ थोड़ा सोचो उसके बारे में। एंड सेम काइंड ऑफ प्रूफ तुम्हें माइनर के क्वेश्चन में आ सकता है। ऐसा मे बी आए ना आए तुम्हारे फर्स्ट ईयर में, बट लाइक बेटर टू लाइक गेट रेडी फॉर दैट, एंड इजी आएंगे। सो एज आई सेड, ट्यूट्स विल बी एनफ फॉर एमटीएल के तो पक्का ट्यूट्स एनफ होंगे। एंड इफ यू वंस गो थ्रू योर ट्यूट्स एंड कुछ डाउट्स नहीं आ रहे, देन यू कैन बी श्योर कि तुम्हारा माइनर भी वैसे ही जाएगा, कि इजीली कट जाएंगे। फिर एपीएल का एज यू सेड, मेरे मेंटर भी मुझे बोले थे, मैं भी तुम्हें बोल रहा हूँ कि एपीएल इज जस्ट अ स्पीड टेस्ट। तुम्हारे तुम अगर थियरी देखोगे एंड कंपेयर टू जेई, थोड़ा लाइक जनरलाइजेशन है बेसिकली जेई के मैकेनिक्स का। सो इफ यू मतलब जेई में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, यहाँ पे थोड़ा वेक्टराइज फॉर्म में होगा बस। तो थियरी विल बी प्रेटी इजी। फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो एक बार जस्ट गो थ्रू इट, और मुझे भी अगर टीएम करना है तो कर लो क्वेश्चंस। बट तुम्हें एपीएल से पहले बहुत थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पूरा एक दिन बस एपीएल करो तुम। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूट्स देख लो, एंड आई थिंक दैट विल बी एनफ। तुम्हें कुछ बुक्स बोले होंगे कि रेफर करना है तो कर लो, यू कैन डू दैट, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। अगर टाइम नहीं है तो यू डोंट नीड टू डू दैट। और एपीएल का क्या ही बोल सकता हूँ, इट्स जस्ट अ स्पीड टेस्ट, कि तुम्हें समझना है क्वेश्चंस फटाफट, और यू जस्ट नीड टू स्टार्ट राइटिंग, जस्ट डोंट स्टॉप राइटिंग ड्यूरिंग एग्जाम। हमारे टाइम में तो यही था। ईएलएल का ईएलएल का तुम्हारा क्या क्या लाइक सिलेबस क्या है, एक ब्रीफ आइडिया दे दोगे? मतलब सर्किट्स ये होगा। एनालॉग सर्किट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और डिजिटल बाइनरी। अच्छा, ये बीजेटी वगैरह तो नहीं है ना, ट्रांजिस्टर्स वगैरह, पी नहीं वायर में सर, होगा। नहीं वो नहीं है। हाँ, तो ईएलएल में भी थिंक क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे ईएलएल में भी, एज ए सेड ट्यूटोरियल्स आर अ ब्लूप्रिंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा मेजर बहुत लेंथी आ गया था, और लास्ट में एक 10 मार्क का क्वेश्चन था, दैट वाज लाइक प्रेटी टफ। तो जस्ट लाइक हैव योर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग योर माइनर एंड मेजर, कि अगर तुमसे नहीं हो रहा एंड लाइक यू आर प्रेटी कॉन्फिडेंट कि तुम पढ़े हो, तो बाकी सबसे भी नहीं हो रहा होगा। एंड लाइक नंबर दे देते हैं, अगर सभी से नहीं हुआ होगा तो लाइक 50% नंबर तो दे ही देते हैं ईएलएल में। मतलब प्रॉफ्स बहुत अच्छे हैं इलेक्ट्रिकल के इन जनरल। सो मतलब कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। एंड जेई से थोड़े न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे ऑप एम्प वगैरह तो नहीं पढ़े होंगे ना जेई में, अनलेस मेंस एक्स्ट्रा टॉपिक्स में पढ़े होंगे, बट वो एडवांस्ड सिलेबस में तो नहीं है। और तुम्हारा थ्री फेज वगैरह भी होगा आई गेस, वो एक बार देख लो। मतलब हमने तो ऐसे ही करा था कि माइनर के एक दिन पहले मतलब दो तीन लोग बैठ गए थे, एंड जस्ट वी स्टार्टेड डिस्कसिंग कि इसका क्या डाउट है, बाकी दो लोग क्लियर कर लिए, एंड दैट्स अ रियली नाइस वे टू स्टडी, कि दो तीन लोग बैठ जाओ एंड लाइक स्टार्ट डिस्कसिंग कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा है सर ने। एंड आई होप यू आर मेंटेनिंग नोट्स ना, जिसके पास अगर नोट्स नहीं है तो अगर किसी के पास नोट्स हैं तो उसके साथ बैठ के पढ़ लो, लाइक दैट्स अ रियली नाइस थिंग। और वैसे ईएलएल का और कुछ पूछना है किसी को? तो ये ईएलएल में मतलब प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि हमारा जो ट्यूटोरियल शीट्स होते हैं उसमें जैसे हर एक शीट में लगभग 5-6 सवाल ही होते हैं। मतलब थोड़ा और प्रैक्टिस कितने के ट्यूट्स लिए हैं? 4 अरे एनफ है यार, मतलब 5-6 सवाल। वो मैंने कहा ना कि अगर ज्यादा
लाइक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लास में कवर ना कराया हो, ट्यूटोरियल भी उतने लेंथ का ही रहेगा. सो इट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट्स क्लास में क्या पढ़ा है एंड एग्जाम में क्या आने वाला है. सो वो 5-6 सवाल अगर हैं वो लाइक डिफरेंट डिफरेंट सवाल ही होंगे, तो तुम देख लो, लाइक ढंग से पूरा समझ लो, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट तो आई डोंट थिंक अभी तुम्हारे पास टाइम होगा कि रेफरेंस बुक अभी बैठ के देखो, क्योंकि कुछ कुछ रेफरेंस बुक्स में ऐसा होता है इलेक्ट्रिकल में कि नोटेशन कुछ अलग कर दिया या समथिंग लाइक दैट, एंड तुम्हें ढूंढना पड़ेगा रेफरेंस बुक में कि कौन से पार्ट में है. इफ यू वांट तो कर लो वैसे, बट आई थिंक ट्यूट्स आर एनफ. तुम एक बार प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, तो दिस कुड हेल्प यू कि तुम्हें अगर लग रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टेप डेफिनेटली आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो तुम मतलब थोड़ा उस पर्टिकुलर स्टेप को ही प्रैक्टिस कर सकते हो. जैसे मैंने एमटीएल में कहा, अगर मैट्रिक्स को इन्वर्स करना है इस पर्टिकुलर मेथड में, तो तुम देखो फटाफट इन्वर्स कैसे करना है, आर देयर एनी ट्रिक्स टू इन्वर्स क्विकली, वैसा. तो ईएलएल में भी अगर वैसा होगा तो यू कैन डू दैट. ट्यूटोरियल्स आर रियली एनफ. मतलब यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि तुम्हें पूरा समझ में आ रहा है, नॉट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तुम अगर प्रैक्टिस करना है तो तुम कुछ वैल्यूज चेंज कर दो, या लाइक सिंगल फेज है तो 3 फेज बना दो, वैसा थोड़ा क्वेश्चन में अगर मॉडिफाई कर दो एंड सोचो कि अगर ये होता तो कैसे करता मैं, ये होता तो कैसे करता, एंड तुम्हें समझ आ रहा है नहीं, वो तब पता चल जाएगा. लाइक तुम अगर स्टकअप हो रहे हो तो इन दैट केस यू माइट वांट टू रिवाइज योर नोट्स. वैसा CML का तुम्हारा 3 पार्ट्स होगा, राइट? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल. इज दैट स्टिल द केस या कुछ और है? It's still the case. 3 parts. हाँ, तो इनऑर्गेनिक तो आई फील पूरा रट्टा है. मतलब मोस्टली इनऑर्गेनिक में स्टिल कुछ पार्ट तुम समझ के तुम्हें पूछ सकते हैं कि जैसे याद नहीं आ रहा, बट जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन काउंट्स होगा एंड देयर आर सम मेथड्स की. हाँ, मतलब इनऑर्गेनिक में ऐसे पूछ सकता है कि अपार्ट फ्रॉम द रट्टा वाला पार्ट, कि तुम्हें कुछ पूछेंगे कि दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम तुम पहले कभी नहीं सुने होंगे, वो कंपाउंड का नाम देंगे, उसका लाइक फॉर्मूला या स्ट्रक्चर कुछ देंगे, एंड पूछेंगे कि व्हाई डज इट बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे. सो you just need to recollect those lecture slides जिसमें वो particular way को, वो particular behavior को explain करा था, and you need to like relate जो भी given information है to that particular whatever you are taught. So मान लो कि अगर if it is the case कि तुम्हारा अगर outer shell में certain number of electrons होगा तो ये particular type of magnetic behavior आएगा, and पूछा हुआ कि and question में ये आएगा कि this particular compound जितना भी बड़ा हो, डरना मत, जितना भी बड़ा हो कंपाउंड, बस देखना कि हाँ, पूछेगा कि फॉर एग्जांपल व्हाई इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल एवर डिस्कवर्ड, या दिस इज अ रीसेंट साइंटिफिक डिस्कवरी, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड व्हाई डज इट बिहेव इन दिस पर्टिकुलर वे. तो जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट इनऑर्गेनिक में क्या क्या एनोमलीज हैं जस्ट लाइक जेई, एंड क्या क्या पर्टिकुलर behaviors are related to what particular structures. तो वो थोड़ा सोचने में टाइम लग सकता है, मतलब देख लो वैसे. और बाकी क्वेश्चंस तो मोस्टली तुम्हारे रट्टे वाले ही होंगे. तो इन सच क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तुम जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है यू राइट इट डाउन. ऐसा नहीं कि दिस साउंड्स स्टूपिड, दिस आंसर साउंड्स स्टूपिड, ये नहीं लिखूंगा, जस्ट राइट इट डाउन. मतलब ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हारे एफर्ट के लिए तुम्हें कुछ क्रेडिट दे सके. बाकी फिजिकल में आई थिंक तुम्हारा वो कुछ क्वांटम वगैरह भी कराया होगा समथिंग, राइट? फिजिकल में सिलेबस क्वांटम वगैरह है ना, उसमें भी मतलब क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट है एंड यू आर इन फर्स्ट ईयर, तो मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं जो डायरेक्ट क्लास में पढ़ाया है. सो जस्ट लाइक जो भी कॉन्सेप्ट्स है उन्हें एक बार देख लो, समझ लो, एंड अगर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, इट इज पॉसिबल कि मतलब ऐसे कुछ हायर लेवल का इन पासिंग मेंशन कर दिया है, तो दैट यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट कि हाँ दिस
because of this happens something like that. ऐसे सबका लाइक एक्सप्लेनेशन में भी ना मिले तुम्हें, क्योंकि काफी सारे हायर कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। और ऑर्गेनिक में तो आई डोंट रिमेम्बर मच। ऑर्गेनिक में भी जस्ट गो थ्रू योर लेक्चर्स, ट्यूटोरियल, सेम थिंग। बाकी और क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होगा ना राइट तुम्हारा? आई थिंक जस्ट MCP. ऑटोकैड बेस्ड होगा राइट इंजीनियरिंग ड्राइंग? हाँ यस सर, MCP। क्या हाँ यस सर बस नहीं। मतलब तुम्हारा पेपर बेस्ड ड्राइंग है या पेपर बेस्ड ड्राइंग है या ऑटोडेस्क का? हाँ माइनर्स तक आई थिंक पेपर बेस्ड है, उसके बाद फिर ऑटोकैड पे हो जाएगा शिफ्ट। अच्छा राइट। सो हाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन द सेंस कि तुम्हारा आइसोमेट्रिक जो भी क्वेश्चंस होगा उसमें फटाफट तुम्हें लाइक लाइन वगैरह बनाना होगा। मतलब क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होंगे, मतलब क्वेश्चन ऐसा ही होगा कि तुम्हें पहले कुछ मिनट लाइक मॉडल को विजुअलाइज करना पड़ेगा। आई थिंक वही होगा ना कि एक मॉडल दिया है एंड उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू बनाना है, और अदर वे अराउंड। सो तुम्हें पहले तो कुछ मिनट तुम विजुअलाइज कर लो कि मॉडल को, कि लाइक दिमाग में थोड़ा इधर उधर कि पहले से ही स्टार्ट कर दिया, और एक दो मिनट लाइक स्पेंड किया उसमें विजुअलाइज करने में। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, जस्ट लाइक गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम स्टिल ऑडिबल राइट? मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, मुझे बोल रहा है। Yes, sir. Like your video paused for a minute, but like now it's fine. ओके हाँ तो वही। और पेपर बेस्ड में और क्या वही होता है हमारे लाइक जो सर थे उस लैब में, वो तो बोलते थे कि एक दो लाइन ही तो बना रहे हो, इतना टाइम क्या ले रहे हो, लाइक 5 मिनट लाइन लगेंगे इस डायग्राम बनाने में, लाइक सच लाइक दैट। सो तुम्हें क्या करना है कि फटाफट एक बार वंस यू विजुअलाइज दैट, अगर एक दो मिनट में नहीं हुआ तो जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा एंड कम बैक टू दैट। एंड वंस यू विजुअलाइज इट, तुम्हारे कुछ ट्रिक्स वगैरह भी होंगे राइट, कि आइसोमेट्रिक में अगर बनाना है, इफ यू वांट टू गो राइट, तो मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स तुम्हें काउंट करना पड़ेगा बेसिकली। तुम स्केल से मेजर करोगे इन दैट पेपर एंड नंबर ऑफ यूनिट्स एक एक लाइन बना दोगे। उसमें मोस्टली तुम्हारा स्पीड टेस्ट ही रहता है तुम्हारा इस कोर्स में। लेटर तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड आएगा, उसमें तो लाइक एनिमेशंस वगैरह भी होंगे। उसमें it will be much easier for you to work because क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है, but there will be more, but MCP right? And MCP 101 भी एक और होगा, that is I think slang is the मजदूरी। उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो मेरा A माइनस ही लगा था, रैंडम ग्रेडिंग होता है उसमें, so don't expect much। तो हो भी गया होगा। एंड तुम्हारा ये भी होगा राइट MCP 101, एक लास्ट में एक मॉडल बनाना है फॉर सबमिशन, बट दैट ठीक है, वो बात है होगा। तो MCP हो गया, और क्या कोर्सेज है तुम्हारे? Sarthak is CLL, asking about APL, PYL. PYL राइट। सो PYL में कौन, नरुला सर क्या अभी भी? Sarthak, you can Can answer. anyone unmute and tell? Anyway, it doesn't matter। मतलब PYL में तो यही होगा कि थोड़ा आई थिंक BJT टाइप्स हो गए जो भी। इतना याद नहीं आ रहा PYL में क्या था। एक बार कोर्स कंटेंट बोल सकते हो क्या तुम्हारे PYL का? अच्छा सुनील सर, मतलब मुझे नहीं पता कौन है शायद। मतलब ओवरऑल एक बार डिस्क्राइब कर सकते हो क्या तुम्हारे क्या क्या पढ़ाया अभी तक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसमें क्या होता है? वो मतलब इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब। अच्छा ओके 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 ओके। तो हमारे तो नरुला सर थे। सो फॉर माय माइनर आई रिमेम्बर कि क्वेश्चंस तो डायरेक्ट नहीं थे हमारे। हमें पूछा गया था कि मतलब बेस्ड ऑन व्हाट वी वर टॉट, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह हमें लाइक एक बार सिचुएशन दिया गया था एंड पूछा गया था कि इसका
मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करो एंड एक और बिहेवियर था, एक्सप्लेन करना था कि ये क्यों होता है एंड स्टफ। और कुछ और क्वेश्चन थे कैलकुलेट, मतलब कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे कि इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एंड दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ ट्रिक क्वेश्चन कि वो डायरेक्ट नहीं था, मतलब एक ऑब्जर्वेशन करना था। बेसिकली ऐसा था कि एक सर्किट था एंड वी हैड टू ऑब्जर्व कि एक और लूप ऑफ सर्किट है व्हिच विल अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट एरिया एज वेल, तो वो करना था। So this was one course where I was like, where I thought कि ठीक है, ट्यूटोरियल्स आर नॉट रियली एनफ, मतलब थोड़ा और समझना पड़ेगा इस कोर्स को। एंड दिस वाज वन ऑफ द फ्यू कोर्सेज जिसका लाइक मैं रेफरेंस बुक उठाया था, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था। सो फॉर दिस आई वुड सजेस्ट कि मतलब जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं उन्हें क्रिस्टल क्लियर रखो। एंड क्योंकि आई थिंक सुनील सर, आई डोंट नो हु ही इज, बट सुनील सर, दीपक सर आई थिंक तुम्हारे, I don't know, ये तो मुझे कभी पढ़ा ही नहीं है, होपफुली दे आर मोर lenient than Narula sir, but of course go through your tutorial, make sure you understand that fully, concepts को crystal clear रखो, and अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो अभी से start कर दो, वो PYL पहले खत्म करो, क्योंकि this was one course that was a bit scary for me at that time. More than that I can't say, like इसमें तो तुम अगर मुझे डाउट्स भी डीएम करोगे, आई एम नॉट श्योर आई विल बी एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि मुझे ज्यादा कोर्स कंटेंट याद भी नहीं है। चल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन सर। पीवाईएल के बाद और कोई कोर्स है? ईएलएल, पीवाईएल और क्या था? सीएमएल, मजदूरी, ड्राइंग, क्यूएल, कॉल। कॉल। कॉल में किसी को दिक्कत है क्या? मतलब ठीक है, ठीक है, व्हाट एनीवे। सो कॉल में तो तुम्हारा कौन सा लैंग्वेज है वैसे अभी प्रेजेंटली? क्या पढ़ा रहे हैं? पाइथन ही पढ़ा रहे हैं, बढ़िया। सो कॉल 100 तो बेसिकली तुम्हें बेसिक प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस कराता है, एंड कुछ नाइस कॉन्सेप्ट्स होंगे उसमें, लाइक वेरी रूडिमेंटरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एंड एक बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन होगा फॉर क्विक पावर कैसे लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें तो नॉट जस्ट इम्प्लीमेंटेशन, तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस भी टेस्ट होता है। यू कैन से बहुत बहुत बेसिक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी है, बट आई वुडंट कॉल इट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। मतलब some questions will test your knowledge of implementation, तुम्हारा मतलब बेसिकली एक पेपर में ऐसे आते हैं कॉल के क्वेश्चन जनरली, पेपर में तुम्हारे पूरा कोड प्रिंट हुआ होगा एक्सेप्ट फॉर सर्टेन ब्लैंक्स, यू नीड टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द बिहेवियर दैट इज एक्सपेक्टेड। तो तुम सोचो कि इसमें अगर फॉर लूप लगाऊंगा, इसमें अगर व्हाइल लूप लगाऊंगा, इसमें अगर मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करूंगा या डिक्रीमेंट करूंगा बाय सर्टेन अमाउंट, तो क्या होगा? Those are the basic things that you need to plug in a fill in the blanks question, and check कि इसका behavior क्या हो रहा है, and from that you might get a like idea कि how to proceed to the next one. उसके बाद another type of question is तुम्हें like time complexity introduce कराया होगा in call में, order n log n and so on. So उसका mathematical definition तो वही है कि मतलब fn is order gn if fn is less than c times gn and so on. But तुम्हें अगर like quickly याद रखना है तो you can make something like, मतलब तुम बस ऐसे ही सोचोगे कि gn is upper bound of fn, so तुम्हें एक snippet of code दिया होगा and तुम्हें बोला कि explain करो उसका complexity order क्या है and क्यों है. Another thing in call questions is, in fact in computer science completely in coding courses, उसमें क्या होता है, if you're asked to implement something algorithm, तो implicitly it is understood कि तुम algorithm implement करो and उसे prove करो why is that correct, and उसका time complexity निकालो. Okay, not just कि algorithm लिख लिया and check करो कि ये सही है नहीं. तो basically ये तीन चीजें हमेशा रहते हैं कि तुम prove करो, algorithm implement करो, prove why that algorithm is correct. मतलब basically arguments दो कि ये for loop इतनी बार चलता है and
only in these cases ये particular variable increment होता है, and that's why final answer is that variable का value. मतलब वैसे ही तुम्हें इंग्लिश में स्टेटमेंट्स लिखने होंगे कि why that is correct, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इतना ज्यादा रिगरस नहीं रहता क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट कोडिंग कोर्स है. एंड देन उसका कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी तुम्हें लिखना पड़ेगा. लाइक दैट इज अंडरस्टूड कि ये तो लिखना ही है. अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, हाँ मतलब यही कि एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करो, एंड दैट कुड बी अ लिटिल मतलब टफ इन द सेंस कि थोड़ा सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है वो. फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, मतलब मान लो तुम्हें अगर सॉर्टिंग अभी तक नहीं पढ़ा है, लेट्स से अभी तक सॉर्टिंग नहीं पढ़ा है एंड तुम्हें बोला है कि देयर इज अ गिवन एरे ऑफ नंबर्स एंड यू नीड टू सॉर्ट देम फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर. तो तुम अपना दिमाग लगाओगे, लेट्स से मतलब यू गो थ्रू द एरे फर्स्ट, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर आया उसे निकाल लो एंड पहले रख लो, एंड देन अगेन गो थ्रू द एरे विद एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर जो तुम निकाल लिए, अभी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो रख लो. सो दैट इज एन एल्गोरिथम दैट यू डेवलप फ्रॉम स्क्रैच, जो तुम्हें पहले नहीं पढ़ाया होगा. तो वैसा एक क्वेश्चन यू मस्ट एक्सपेक्ट कि एक क्वेश्चन तो वैसा आएगा ही माइनर में. मतलब समथिंग दैट जो पहले नहीं पढ़ा है एंड उसका एल्गोरिथम तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है, एंड ऑफ कोर्स उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रूफ भी लिखना है उसके बाद. तो दीज आर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन कॉल. मोस्टली ऐसा ही होता है कि देयर इज अ सेट ऑफ पेजेस एज क्वेश्चन पेपर, एंड क्वेश्चन पेपर पे ही तुम्हें आंसर लिखना होता है, क्योंकि तुम्हारा ऑफलाइन है वैसे ही होगा कॉल में. एनी स्पेसिफिक डाउट्स है कॉल में तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो या मुझे अभी बोल सकते हो. Anything else you want me to discuss? I think I'm ready to wrap up. हाँ सर, आप Hello. कौन से हॉस्टल के हैं? मैं रावली को. रावली होते हैं. करंटली मैं वैसे हॉस्टल में नहीं हूँ, तो व्हाट्सएप ही कर लो जो करना है. Sir, और कुछ can you डाउट्स है वैसे कोर्स? yes sir. So can you share us मतलब कि how you actually started your like coding journey and all that, मतलब आपने second semester first semester क्या किया, कैसे all these things. अच्छा हाँ, मतलब हाँ. फर्स्ट सेमेस्टर तो एक्सप्लोर ही कर रहा था, वैसे कुछ एक्सप्लिसिटली करा नहीं. सेकंड सेमेस्टर के बीच मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब मैंने एक मिनट चेक कर लेता हूँ कब से शुरू करा था. आई थिंक इट वाज दिसंबर 2020. तो 2019 जुलाई में आया मैं, एंड फर्स्ट ईयर टोटली कुछ नहीं करा. मैं थर्ड सेमेस्टर के बाद कर रहा हूँ. एक मिनट. या इट वाज जैन 2020, सॉरी. या सो दिसंबर 2019. तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो विंटर वेकेशन आता था उसमें मैंने थोड़ा बहुत करा था. मतलब हमारे हॉस्टल के कुछ सीनियर्स हैं जो मतलब थे, वो करते थे एंड स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट वगैरह थे. तो दे इंट्रोड्यूस्ड अस टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एंड हमारे काफी सारे बच्चे थे मेरे दोस्त वगैरह, तो हम एक साथ वैसे कॉन्टेस्ट देते थे. एंड आफ्टर लॉकडाउन मार्च 2020 के बाद मतलब वैसे कुछ काम तो था नहीं, तो मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग तब मतलब सीरियसली शुरू करा था अप्रैल 2020 को. सर all I'm saying कि क्या आप कोई clear pathway टाइप का बता सकते हैं क्या, like कैसे क्या करना है? वैसे Something like तुम कि मतलब yeah. हाँ मतलब वैसे अगर पूछोगे तो कोई भी ग्रैंड मास्टर भी तुम्हें यही बताएगा कि तो यू नीड टू प्रैक्टिस. No sir, I know, actually I know those things. मतलब मैंने खुद कर रहा हूँ like पिछले almost 3 weeks से. And so I just need to know मतलब कि किस particular contest या फिर जो programs होते हैं वर्ल्ड वाइड उन पे ध्यान देना हो, या फिर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम कोड फोर्सेस करना चालू करो. कर रहे हो तुम कोड फोर्सेस? मैं लीड कोड पे कर रहा हूँ. मैंने मतलब अभी सिंपली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया. हाँ तो ठीक है. तुम्हारा कॉल हो गया? तुम्हारा कॉल हाँ मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था. फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया राइट? तो कॉल 100 हो गए तो तुम्हें बेसिक प्रोग्रामिंग तो पता ही होगा. यस सर. हाँ तो आई सजेस्ट यू स्विच टू सी प्लस प्लस. तुम अभी पाइथन में कर रहे हो राइट? हाँ सर, मैं जावा में कर रहा हूँ. जावा में. तो आई सजेस्ट यू स्विच टू सी प्लस प्लस, या जावा में भी कंटिन्यू कर सकते हो, नो मैटर. तो मैंने सोचा है लाइक सी प्लस प्लस बाद में सीखने का, मतलब जावा में कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद स्विच कर जाऊंगा उस पे.
वैसे कोई लैंग्वेज कंप्लीट नहीं होता, मतलब आई मीन मतलब मैंने मतलब ऐसा सुना है कि इफ यू स्टार्ट विद C++, स्विचिंग फ्रॉम C++ टू सम अदर लैंग्वेज इज इजियर देन द अदर वे अराउंड। सो तुम अगर एक बार जावा में सेट हो गए, आई गेस थोड़ा टफ हो सकता है जावा टू C++ स्विच करना, बट देख लो, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं कर सकते हो। और तो मेरे पास एक बुक है, इट्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हैंडबुक बाय एंटी लैक्सोनन। तो वो मैं वैसे पहले भी डाला था, अभी भी डाल दूंगा वैसे ग्रुप में। कौन से ग्रुप में डालना है वैसे? मैं आलोक आलोक प्रभु को भेज दूंगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। यस सर। सो दैट्स अ वेरी गुड बुक टू गेट स्टार्टेड विद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। उसमें लाइक वो लैंग्वेज स्पेसिफिक है, थोड़ा C++ में इम्प्लीमेंटेशन सिखाया। तो वो मतलब पहले तो इंट्रोड्यूस करा है कि लैंग्वेज स्पेसिफिक्स क्या है C++ के, दैट यू कैन यूज इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। उसके बाद धीरे धीरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस करा है, जस्ट लाइक कॉल 100। उसके बाद मतलब बेसिक थिंग्स इंट्रोड्यूस करा है, लाइक ग्रीडी एल्गोरिथम्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह। तो दैट्स अ वेरी गुड बुक टू गेट स्टार्टेड, तो वो मैं भेज दूंगा, वो तुम पढ़ो। आफ्टर दैट तुम कोड फोर्सेस में कॉन्टेस्ट देना चालू कर दो, ठीक है। लाइक डोंट मिस एनी कॉन्टेस्ट। उसमें तो डिव 2 के कॉन्टेस्ट में तुम पहले कुछ क्वेश्चंस करो। सो मतलब बेसिकली तुम प्रैक्टिस से ही थोड़ा इम्प्रूव होगा। कोड फोर्सेस के अलावा काफी सारे आर्काइव्स रहते हैं प्रॉब्लम्स के, तुम अगर सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। देयर इज अ समथिंग कॉल्ड CSES प्रॉब्लम सेट, ठीक है। तो दैट्स समथिंग यू कैन गो थ्रू। उसमें उसमें काफी सारे लीड कोड टाइप प्रॉब्लम्स ही होंगे, मतलब क्लासिक क्लासिक प्रॉब्लम्स, सारे टॉपिक्स के, 3D DP ट्रीज ग्राफ्स वगैरह सारे के होंगे। तो यू स्टार्ट डूइंग दैट, या कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम सेट में करो, या कहीं पे भी जाके लाइक यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो मतलब उसका एडिटोरियल देख सकते हो, उसका आंसर देख सकते हो, सोल्यूशन, या फिर उस टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हो। तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ओके सर। और सर लाइक मतलब ये सब करने के बाद मैं क्या करूँ, मतलब अगर मैंने करते टाइम के साथ रेटिंग्स अपनी इम्प्रूव की एंड ऑल दैट, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से सीख लिया, तो उसके बाद फिर क्या, मतलब उसके बाद तो मुझे पाथवे क्लियर नहीं है अभी तक। मतलब पहले उतना कर लो वैसे, फिर उसके बाद लाइक डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं ग्राफ्स के, काफी ब्यूटीफुल टॉपिक्स आते हैं एक्चुअली ग्राफ्स के। और मतलब इनफैक्ट तुम ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बाइनरी सर्च और ग्रीडी भी सीख लो ना, इन तीनों में बहुत टफ क्वेश्चंस बन सकता है। तो सो ट्राई टू, मतलब सीपी में द आर्ट इज नॉट कि तुम कितने सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हो, बट द आर्ट इज हाउ यू अप्लाई देम इन द क्वेश्चन, ठीक है। वो काफी सारे लोग कर नहीं पाते हैं, सो दैट्स द स्पोर्ट सीपी में, आई फील। Sarthak is asking in the chat box, like how many questions should we do each day? मतलब ट्राई तो करो कि तुम्हारे पास, अब अभी तो मत करो, अगर ब्रेक लेना है तो कर लो 1-2 घंटा बिफोर ए माइनस, बट माइनर के बाद तुम अगर फ्री हो तो डेली देखो 2-3 घंटा, जितने में 2-3 घंटों में जितना भी हो सकता है। तो अगर कुछ क्वेश्चन तुम्हारा मतलब, व्हाई आई एम रेफरिंग टू कोड फोर्सेस, की तुम्हारा एक स्पेसिफिक रेटिंग मिल जाता है आफ्टर गिविंग फ्यू कॉन्टेस्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट रेटिंग तुम देख सकते हो कि सपोज ये रेटिंग इज 1300, तो तुम 1300 वाले प्रॉब्लम्स करो इन इट्स आर्काइव, कि या 1400 वाले, या 1500 वाले, या 1000 वाले। तो नाउ दैट यू डोंट हैव अ रेटिंग, तुम क्या करो कि अगर सम क्वेश्चन इज, जो भी क्वेश्चन देखो, ट्राई टू थिंक ऑन इट फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। अगर वो नहीं मिल रहा तो एंड सोल्यूशन नहीं है तो छोड़ दो उसको, एंड अगर सोल्यूशन है, गो थ्रू द सोल्यूशन एंड देखो कि इज दैट अ टॉपिक दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। अगर यस तो वंस गो थ्रू द सोल्यूशन, मतलब ऐसा करो कि पहले 1-2 लाइन देख लो जस्ट टू गेट अ हिंट, एंड देन अगेन ट्राई, फिर 1-2 लाइन देखो ऑफ द सोल्यूशन, एंड देन अगेन ट्राई। सो अगेन कोड फोर्सेस में एक और फीचर है कि तुम्हारे प्रॉब्लम टैग्स रहते हैं। टैग्स आर लाइक व्हाट आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या, या कंस्ट्रक्टिव है क्या, ग्राफ्स है क्या। इफ यू हैवंट स्टडीड ग्राफ्स तो छोड़ दो, इफ यू हैवंट स्टडीड FFT तो छोड़ दो।
जो पढ़ा है अभी तक, बाइनरी रिसर्च मान लो करा है, तो यू कैन सर्च क्वेश्चंस रिलेटेड टू बाइनरी रिसर्च, वो सब कर सकते हो। तो फॉर हाउ मेनी क्वेश्चंस तुम 2-3 घंटा करो पर डे, एंड लाइक अगर हाफ एन आवर तुम मतलब इन्वेस्ट करते हो, तो दैट बिकम्स लाइक 5-6 क्वालिटी क्वेश्चंस। अगर इजी करोगे तो दैट विल बी मच हायर, 20-30 भी कर सकते हो पर डे। बट आई वुड सजेस्ट कि डू दोस क्वेश्चंस दैट आर जस्ट बियॉन्ड योर रेटिंग लेवल। मतलब ऐसा है कि तुम्हें क्वेश्चन का एकदम आइडिया फॉर्म हो रहा है, एंड बट you're like you need to still invest your thinking कि ठीक है, ये particularly implement कैसे होगा, या ये particular part of the solution कैसे होगा, and so on. So 5-6 तो कर ही सकते हो पर डे क्वालिटी क्वेश्चंस। अच्छे से लाइक 20-30 मिनट उसमें इन्वेस्ट करो जब तक नहीं होता। So, बहुत जल्दी उसके सॉल्यूशंस मत देखो, बिकॉज इट कंप्लीटली डिफीट्स द पर्पस। और कोई क्वेश्चंस है क्या? Anything else? Yeah, wrap up कर सकते हैं। Okay, so like if you don't have no more questions, so we can wrap up, and also the time is also up. So and if anyone has further question, he or she can also ask the DM with Anshuman sir, like anything personal or anything which arise in your mind after the session. And kindly also fill the feedback form before leaving. Right? Yes, So Adit. are you in the group of that mantra of life? Yeah, yes, I'm in the group. Oh, okay, sir. So okay, guys, we are leaving.